Hello everyone, welcome to back our channels एग्जाम पोल्स करंट अफेयर्स। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एग्जाम पोल्स करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर serious about government exams, subscribe to exam polls current affairs and press the bell icon so you never miss important updates। दोस्तों, अगर आप सरकारी परीक्षाओं के बारे में गंभीरता के बारे से सोच रहे हैं तो एग्जाम पल्स करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। डियर फ्रेंड्स, टुडे वी विल कवर 15 crucial MCQs for your upcoming competitive exams. Try to answer each questions before I reveal the correct one. दोस्तों, आज हम आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 15 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यूज पर चर्चा करेंगे। चलिए आज की हेडलाइंस पर गौर करेंगे। आज की हेडलाइंस में हम 9 इम्पोर्टेंट्स टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है दोस्त, पॉलिटी एंड जुडिशियरी रिलेटेड क्वेश्चंस। सेकंड टॉपिक्स, इकोनॉमी एंड टैक्सेशंस। थर्ड टॉपिक, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स। फोर्थ टॉपिक, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट। फिफ्थ, डिफेंस, डिसास्टर एंड सिक्योरिटी। And sixth one, international relations. And seventh, international affairs and global events. Eighth one, international crimes and investigations. And the last one, cultural and heritage. Dear one, these are the 9 important topics today we are going to cover in our 15 MCQs. Let's dive in the class. Today's first questions. Recently, an air ambulance crash was reported in Jharkhand's Chatra district. The aircraft was flying between which two cities? हाल ही में झारखंड के चतरा जिले में एक एयर एम्बुलेंस दुर्घटना की सूचना मिली। यह विमान किन दो शहरों के बीच उड़ान भर रहा था? आंसर ऑप्शन ए, पटना एंड दिल्ली। बी, रांची एंड दिल्ली। सी, कलकत्ता एंड लखनऊ। एंड डी, रांची एंड मुंबई। An unfortunately fortunate air ambulance crash occurred in the Chatra district of Jharkhand. The aircraft was on its way from Ranchi to Delhi when the incident happened. झारखंड के चतरा जिले में एक एयर एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। यह विमान रांची से दिल्ली की ओर उड़ान भर रहा था। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज B is the right answer, Ranchi to Delhi. Next question. Question number 2. Which investigate leaks expose offshore assets tax by the Central Board of District Taxes worth 14,601 crore? किस जांच से संबंधित लीक से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी द्वारा कर योग्य 14,601 करोड़ की विदेशी संपत्तियों का खुलासा हुआ है? अगेन, विच इन्वेस्टिगेट्स लीक्स एक्सपोज offshore assets tax by the Central Board of Direct Taxes CBDT worth 14,601 crore? Answer option A, Cambridge Analysis Files. B, Panama Papers, Paradise Papers and Pandora Papers. C, WikiLeaks War Logs. And D, Pegasus Surveillance Files. The Central Board of Direct Taxes has successfully taxed offshore assets worth over 14,601 crore following relevance in global leaks like the Panama and Panama Papers.
केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड सीबीडीटी ने पानामा पैराडाइज और पांडोरा पेपर्स जैसे वैश्विक खुलासा के बाद 14,601 करोड़ की विदेशी संपत्तियों पर कर लगाया है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी इज द राइट आंसर, पानामा पेपर्स, पैराडाइज पेपर्स एंड पांडोरा पेपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 3. The Patna High Court recently issued notice regarding concern about the conditions of which of the following facilities in Bihar. पटना उच्च न्यायालय ने हाल ही में बिहार में निम्नलिखित में से किस सुविधाओं की स्थिति के लेकर चिंता व्यक्त करते हुए नोटिस जारी किया है? आंसर ऑप्शन ए, prisons infrastructure, B, mental health facilities, C, government schools, and D, police stations. Taking a serious note of the state mental health care, the Patna High Court has sought a report on the current conditions on mental health facilities across Bihar. मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर गंभीरता दिखाते हुए पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं के स्थिति पर नोटिस जारी किया है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी इज द राइट आंसर, मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 4. Which High Court recently sought clarifications from the state government regarding about 400 custodial deaths? हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से हिरासत में हुई 400 से अधिक मौत के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था? आंसर ऑप्शन ए, दिल्ली हाई कोर्ट, बी, इलाहाबाद हाई कोर्ट, सी, झारखंड हाई कोर्ट, डी, मद्रास हाई कोर्ट। The Jharkhand High Court has expressed concern about reports of more than 400 deaths occurring in custody and has asked the state government for a detailed explanations. झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में 400 से अधिक हिरासत में हुई मौत पर चिंता जताई है और सरकार से इस पर स्पष्टीकरण मांगा है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज C is the right answer, Jharkhand High Court. Next question. Question number 5. The Delhi Meerut Namo Bharat corridor inaugurated recently belongs to which category of transport infrastructure? हाल ही में उद्घाटन किया गया दिल्ली मेरठ नामो भारत कॉरिडोर परिवहन अवसंरचना किस श्रेणी में आता है? आंसर ऑप्शन ए, बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, बी, मेट्रो रेल सिस्टम, सी, रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम, डी, डेडिकेटेड फॉरेन कॉरिडोर। The Namo Bharat trains operator of the Regional Rapid Transit System RRTS designed to provide high-speed connectivity between Delhi and Meerut. दिल्ली मेरठ नामा भारत कॉरिडोर भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस का हिस्सा है जो हाई स्पीड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी इज द राइट आंसर, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 6. Recently, Rashtrapati Bhavan installed a bust of which freedom fighter as part of efforts to highlight India's heritage? हाल ही में भारत की विरासत को उजागर करने के प्रयास के तहत राष्ट्रपति भवन में किस स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिभा स्थापित की गई है? आंसर ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक, बी, सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालाचारी, डी, लाला लाजपत राय।
As part of preserving India's rich history, a bust of C. Raj Gopalachari, the last Governor General of India, was unveiled at Rashtrapati Bhavan. भारत की विरासत को सम्मान देने के लिए राष्ट्रपति भवन में देश के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा स्थापित की गई है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज C is the right answer. C. Rajgopalachari. Next question. Question number 7. The Ministry of Agriculture recently launched Bharat Vistar. It is best described as which of the following? कृषि मंत्रालय ने हाल ही में भारत विस्तार परियोजना शुरू की. इससे संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है. Answer option A, a fertilizer subsidy scheme. B, an AI-powered multilingual agricultural information tool. C, a crop insurance scheme. D, a drone monitoring system for irrigation. Bharat Vistar is an innovations AI tool designed to provide agricultural information to farmers in multiple Indian language. कृषि मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया भारत विस्तार एक एआई आधारित उपकरण है जो किसान को विभिन्न भाषाओं में कृषि संबंधी जानकारी प्रदान करेगा. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज B is the right answer, an AI powered multilingual agricultural information tool. Next question. Question number 9. The new NCERT Class 8 class social science textbooks includes sections discussing which of the following topics. हाल ही में एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से किस विषय पर चर्चा करने वाला एक खंड शामिल है? आंसर ऑप्शन ए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स. बी, करप्शंस इन द जुडिशियरी. सी, इमरजेंसी प्रोविजंस. डी, पंचायती राज रिफॉर्म्स. To increase its awareness among students, NCERT has introduced a new section discussing the impact and issues of corruption within the judiciary system. छात्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी ने कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक में न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के विषय को शामिल किया गया है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज B is the right answer, corruption in the judiciary. Next question. Question number 9. Recently, President Draupadi Murmu unveiled a heritage initiative called Guru Granth Kutir. It is related to which of the following? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रंथ कुटीर नामक एक विरासत पहल का अनावरण किया. यह किससे संबंधित है? आंसर ऑप्शन ए, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन. बी, प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट. सी, डिजिटल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर. डी, कल्चरल एक्सचेंज विद फॉरेन कंट्रीज. In recently, President Draupadi Murmu unveiled Granth Kutir, a heritage project focused on the conservation and preservation of ancient books and rare manuscripts. हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्राचीन पुस्तकों को और दुर्लभ पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए ग्रंथ कुटीर पहल का उद्घाटन किया है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज B is the right answer. Preservation of books and manuscript. Next question. Question number 10. The Bharat EduAS tag recently in news.
in being developed as part of which type of infrastructure? हाल ही में खबरों में रहे भारत एडुआई टेक के किस प्रकार को के बुनियादी ढांचे के हिस्से के रूप में विकसित किया जा रहा है? आंसर ऑप्शन ए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बी फिनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, सी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। Bharat Edwise Stack is being developed under the Digital Public Infrastructure Framework to integrate AI into Indian education system, has recently published. हाल ही में भारत में एडुआई स्टेक को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत विकसित किया जा रहा है ताकि वो शिक्षा के क्षेत्रों में एआई का लाभ उठाया जा सके। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज C is the right answer. Digital public infrastructure. Next question. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to visit which country on February 25 and 26, 2026? Highlights strategic ties. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 फरवरी 2026 को किस देश का दौरा करने वाले हैं जो रणनीतिक संबंध को उजागर करेगा? आंसर ऑप्शन ए सऊदी अरबिया, बी इजराइल, सी फ्रांस एंड डी ऑस्ट्रेलिया। Prime Minister Narendra Modi's upcoming visit to Israel aims to further strengthen the strategic partnership between the two nations on 15 February to 26 February 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 फरवरी 2026 को इजराइल का दौरा करेंगे जिसका उद्देश्य दोनों देश के बीच रणनीति संबंधित को और मजबूत करना है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी इज द राइट आंसर, इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। रिसेंटली मेक्सिको's most wanted cartel leader AI Mencho was reportedly killed in which Mexican states? हाल ही में मेक्सिको के सबसे वंचित कार्टेल नेता एल मेंचो की कथित तौर पर किस मेक्सिकन राज्य में हत्या कर दी गई है? आंसर ऑप्शन ए सोनारो, बी जालिस्को, सी चिचुहुआ, डी वेराक्रूज। Namesio Oresgues Conventions, formerly known as AI Mencho, who was the leader of the Jalisco New General Cartel. He was reportedly killed in Jalisco. एल मेंचो के नाम से मशहूर मेक्सिको की खुस्सा कटनाल नेता की कथित तौर पर जालिस्को राज्य में मार दिया गया है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज B is the right answer, Jalisco. Next question. Question number 13. Recently tensions escalated in Bangladesh after President Mohammad Shahabuddin made allegations against whom? हाल ही में बांग्लादेश में तनाव तब बढ़ गया है जब राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने किसके खिलाफ आरोप लगाए? आंसर ऑप्शन ए शेख हसीना, बी खालेदा जिया, सी मोहम्मद यूनुस, डी तारिक रहमान। The tension in Bangladesh rose after the president raised questions regarding the interim government's leadership under
नोबेल लॉन्चर मोहम्मद यूनुस। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन द्वारा नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर सवाल उठाने के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी इज द राइट आंसर, मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 14. The US Department of Homeland Security recently suspended which program affecting international travelers? अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को प्रभावित करने वाले किस कार्यक्रम को निलंबित किया है? आंसर ऑप्शन ए इंस्टा वीसा वेवर, बी ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, सी ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम, डी स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम। The US Department of Homeland Security has temporarily suspended the Global Entry Program, which allows expected clearance for pre-approved travelers. अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम को निलंबित कर दिया है, जो यात्रियों को त्वरित सुरक्षा मंजूरी प्रदान करता था। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज C is the right answer, global entry program. Next question. Question number 15. Last question. The Panama Papers, Paradise Papers and Pandora Papers investigations were conducted globally in collaborations with which organization? पानामा पेपर्स, पैराडाइज पेपर्स और पांडोरा पेपर्स की जांच किस संगठन के सहयोग से वैश्विक स्तर पर की गई थी? आंसर ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, बी इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट्स ICIG, सी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एंड डी OECD। These massive global leaks, Panama Papers, Paradise Papers, and the Pandora Papers, uncovering offshore tax havens were investigated in collaborations with Transparency International and the investigation journalist ICIG. पानामा और पांडोरा पेपर जैसे बड़े वित्तीय खुलासा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और ICIG जैसे संगठन सहयोग से किए गए थे। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी इज द राइट आंसर, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एंड ICIG। डियर फ्रेंड्स, that's all for today's current affairs class. If you found this video and serious about government exams, then subscribe to Examples Current Affairs and press the bell icon so you never miss important updates. प्यारे दोस्तों, अगर आज के सेशंस आपको इम्पोर्टेंट लगे और आप सरकारी परीक्षाओं के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं तो हमारे चैनल एग्जाम्पल्स करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे चैनल में आने वाले हर वीडियो की महत्वपूर्ण अप टू डेट आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।